الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم بیوی کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مردوں کو سمجھا دیا اور عورتوں کو بھی سمجھا دیا کہ جب نکاح ہو، شادی ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہیں جیسے انسان کے لیے لباس ہوتا ہے، اور ہر ایک کو چاہیے دوسرے کو اپنے لیے ایسے سمجھے جیسے لباس کو ضروری سمجھتا ہے۔ ایسے ہی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا لازم سمجھے۔ جیسے لباس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، اسی طرح بیوی کے بغیر بھی زندگی نہیں گزر سکتی، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ یہ یقین کر لے کہ شوہر کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ کیوں؟ جس طرح بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، اسی طرح شوہر بیوی کے لیے لباس ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اپنے لیے لباس کی طرح لازم سمجھے۔ جیسے انسان لباس کے بغیر اپنے آپ کو عجیب سا شمار کرتا ہے، عجیب سا محسوس کرتا ہے، اور لباس کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ سکتا۔ لباس کے بغیر انسان تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ دوسرے کو اپنے لیے اسی طرح لازم سمجھیں کہ جیسے لباس کے بغیر رہنا مشکل ہے، اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو اپنے لیے لازم سمجھے کہ بیوی کے بغیر بھی رہنا مشکل ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اپنے لیے لازم سمجھے کہ شوہر کے بغیر رہنا مشکل ہے۔ جس طرح ہم جب لباس پہنتے ہیں تو لباس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے لباس کو استری کرتے ہیں، اس سے پہلے دھوتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ صرف استعمال کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ صابن استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوتے ہوئے اچھی طرح میل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لباس خوبصورت بن جائے، بہترین اور اچھا بن جائے، حسین اور جمیل بن جائے۔ پھر اس کے بعد اچھے سے استری کرتے ہیں کہ کوئی بل کپڑے کے اندر باقی نہ رہے۔ استری کر کے دھو کر لباس کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بناتے ہیں۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا خیال رکھے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا خیال رکھے۔ جو کچھ بھی ہو جائے لباس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہو جائے لباس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں کیچڑ آ گیا، پاؤں کی حفاظت نہیں کریں گے بلکہ شلوار کو اوپر کر لیں گے، شلوار کو بچانے کی کوشش کریں گے، پاؤں کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ پاؤں کیچڑ کے اندر لت پت ہو جائے، گندے پانی کے اندر پاؤں چلے جائیں، اور گندے پانی کے چھینٹے، کیچڑ کے چھینٹے پاؤں پر پڑ جائیں، ٹانگ پر پڑ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں سمجھتے۔ لیکن شلوار کو اور پورے لباس کو گندے کیچڑ سے ہم بچاتے ہیں، کیچڑ کے گندے چھینٹوں سے لباس کو بچاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو گندی باتوں سے بچائے، الزامات سے بچائے۔ جس طرح اپنے لباس کو کیچڑ سے بچاتے ہیں، ایسے ہی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو الزامات کے کیچڑ سے بچا کر رکھے، جھگڑوں کے کیچڑ سے بچا کر رکھے، بد اخلاقی کے کیچڑ سے بچا کر رکھے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی الزام ہو، اپنے سر لے لے، لیکن شوہر پر الزام نہ آنے دے۔
बीवी को चाहिए कि इल्ज़ामात का कीचड़ शोहर पर ना आने दे। इल्ज़ामात का कीचड़, बदअखलाकी का कीचड़, बदज़ुबानी का कीचड़ और इसी तरह लड़ाई और झगड़े का कीचड़ शोहर पर ना आने दे। अपने आप को लड़ाई से बचाए, शोहर पर इल्ज़ामात लगाने से अपने आप को बचाए। क्यों? इसलिए कि जिस तरह हम लिबास की हिफाजत करते हैं, शोहर को चाहिए कि बीवी की हिफाजत करे, बीवी को चाहिए कि शोहर की हिफाजत। एक मर्तबा किसी ने मुझे कहा कि आप शोहर और बीवी के दरमियान में झगड़ा हो गया, फैसला करें। मैंने शोहर की बात अलग सुनी, बीवी की बात अलग सुनी। शोहर को अलग बिठाकर, बीवी के सामने नहीं बिठाया और बीवी के वालिदैन के सामने भी नहीं बिठाया, अलग बिठाकर उसकी बात सुन ली और बीवी की बातें अलग सुन ली, शोहर के सामने नहीं बिठाया। जब शोहर की बात सुनी, शोहर ने बातें सुनाते हुए, बीवी पर इल्ज़ामात की बुछाड़ करते हुए अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल दिया। और जब बीवी की बातें सुनी तो बीवी ने इल्ज़ामात लगाए और झगड़े की बातें सुनाई, हत्ता कि अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल दिया। जब दोनों का गुस्सा ठंडा हुआ तो फिर जब एक दूसरे के आमने सामने बिठाया तो यही कहा कि आप एक दूसरे को माफ़ कर दो। एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि एक दूसरे की बातें तो सुने कम अज़ कम। हमने शोहर बीवी के सामने बीवी के ख़िलाफ़ बातें सुनाए, बीवी की कमियां बताए, बीवी की कोताहियां बताए और बीवी शोहर के सामने बैठकर शोहर की कमियां बताए, शोहर की झगड़े की बातें सुनाए, बातें बताए। तो मैंने कहा अगर एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, ये गुस्से का वक्त है, लड़ाई का वक्त है, झगड़े का वक्त है, इससे लड़ाई और झगड़ा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो दूसरा मैंने उस साहब से पूछा, अच्छा ये बताओ, हमने बीवी से भी बातें सुन ली, शोहर से भी सुन ली, अगर बीवी का कसूर निकल आया तो आखिर में क्या होगा? हमें कैसे फैसला करना पड़ेगा? आखिर में हमें क्या कहना पड़ेगा? अगर शोहर का कसूर निकल आया और बीवी का कोई कसूर न हुआ तो फिर शोहर को हम क्या कहेंगे? शोहर के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला करेंगे? तो उस साहब ने कहा आखिर में हम यही कहेंगे, इस फैसले का एंड यही होगा कि एक दूसरे को माफ़ कर दें। तो मैंने कहा हज़रत, एक ये है कि शोहर बीवी पर कीचड़ उछाले और बीवी शोहर पर कीचड़ उछाले और एक दूसरे के सख्त मुखालिफ बन जाए कीचड़ उछालने की वजह से, और एक दूसरे के दिलों के अंदर नफ़रत पैदा हो जाए कीचड़ उछालने की वजह से। हम नफ़रतें एक दूसरे के दिलों में पैदा करके आखिर में ये फ़ैसला दें कि अब एक दूसरे को माफ़ कर दो। इससे बेहतर ये नहीं कि अब जब एक दूसरे से नफ़रत नहीं, ज़हरी तौर पर झगड़ा तो है, पर इल्ज़ामात लगाकर, कीचड़ उछाल कर वो नफ़रत पैदा नहीं हुई। नफ़रत के पैदा होने से पहले हम कह दें तो एक दूसरे को माफ़ कर दो, तो क्या ये बेहतर नहीं? तो यही बेहतर है। शोहर बीवी के दरमियान में जब सुलह कराने लगें, जब शोहर बीवी के झगड़ों का फैसला करने लगें, तो एक दूसरे के सामने बिठाकर दूसरों के एक दूसरे के इल्ज़ामात न सुने, एक दूसरे पर कीचड़ न उछालने दें, बल्कि इब्तिदा ही से कह दें, बातें सुननी भी हैं, अलग अलग बिठा कर सुन लें। फिर जब एक दूसरे के आमने सामने हो तो उस वक़्त बस यही कहें, मेहरबानी करें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। जब इस तरीके से फैसला होगा, एक दूसरे के दिल में नफ़रत भी नहीं आएगी। देखो, जब एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए शोहर को चाहिए कि बीवी पर इल्ज़ामात न लगाए, कीचड़ न उछाले, और बीवी को चाहिए कि शोहर पर इल्ज़ामात लगाकर
उस पर कीचड़ न उछाले। अगर कमियां हैं भी सही, शौहर की कमियां हैं, कोताहियां हैं, क्योंकि जितना मियाँ बीवी में से हर एक दूसरे की कोताहियां और कमियां और खामियां जानते हैं और कोई नहीं जानता। अगर बीवी जानती है मेरे शौहर की कमियां हैं, कोताहियां हैं, खामियां हैं, बीवी को चाहिए कि शौहर के लिए लिबास बन जाए। जैसे लिबास जिस्म को छुपाता है, इसी तरह बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की कमियां छुपा ले, शौहर के लिए लिबास बनकर उसकी कोताहियां छुपा ले, शौहर के लिए लिबास बनकर और उसकी लफ्ज़ें छुपा ले। इससे शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा हो। और अगर खुदा न खास्ता बीवी ने शौहर की कमियां दूसरों को बताई, कोताहियां दूसरों को बताई, शौहर के दिल में ऐसी नफरत पैदा होगी, जिंदगी भर ये नफरत नहीं निकलेगी। उसके बाद जितनी भी मोहब्बत दे दे, जितनी भी हुस्न अखलाक से बीवी पेश आए, सारी ज़िंदगी खिदमत करती रहे, वो पहले वाली नफ़रत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसीलिए बीवी को चाहिए कि शौहर के लिए लिबास बन जाए, उसकी कमियां छुपा ले, उसकी कोताहियां छुपा ले। और शौहर को चाहिए कि बीवी की कमियां छुपाए, कोताहियां छुपाए। एक और मौका पर मुझे कहा गया कि शौहर बीवी के दरमियान झगड़ा है, इसका फ़ैसला करें, इनकी सुलह करा दें। तो जब बात सुनी शौहर की और बीवी की अलग अलग बिठाकर, तो शौहर ने कहा मेरी बीवी मेरे साथ बहुत लड़ती है, बहुत झगड़ती है, बदजुबान है मेरी बीवी, और अगर आप चाहें तो मैं अपनी बीवी की रिकॉर्डिंग करके भी आपको पेश कर सकता हूँ। तो मैंने उस शौहर से कहा कितनी अजीब बात कर दी आपने, बीवी आपकी इज्जत है, जब से ये बीवी बनी है, निकाह हुआ है, ये बीवी आपकी इज्जत है, उसकी रिकॉर्डिंग करके हमें देकर आप अपनी ही इज्जत को उछालना चाहते हैं। आपको चाहिए कि बीवी के लिए लिबास बन जाए, बीवी की कमियां, बीवी की कोताहियां, बीवी की खामियां छुपा लें, किसी को ना बताएं। और अगर किसी को कहना भी है, बस इतना कह दें कि मेरी बीवी को समझा दो, बदअखलाकी करती है, मुझसे झगड़ती है, लड़ती है। पहले तो बर्दाश्त कर, बर्दाश्त नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही कह कि इसको समझा दो, उसकी कोताहियाँ, कमियाँ, अंदर की बातें दूसरों को मत बताओ। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।